Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with set number 8 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SIMCAT, and set is a arrangement based set, and the set says 8 commercial airlines: Air India, Indigo, Vistara, SpiceJet, Akasa Air, Alliance Air, Go First, and Star Air were scheduled to arrive at a major international airport on the final day of an aviation summit. Each airline operated exactly one flight, and each flight originated from a different part of airport: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Chandigarh, Delhi, Hyderabad, Mumbai, and Pune. Further, each flight was assigned a different operational category: cargo, charter, domestic, international, passenger, training, VIP, and medical. The flight landed one after the another in a particular sequence. The following information is known about the landing order. A. The medical flight landed immediately after the international flight, which in turn landed after the cargo flight. B. Vistara landed immediately after Air India, which in turn landed immediately after Star Air. C. The flight arriving from Bhopal landed immediately after the flight arriving from Chandigarh, which in turn landed immediately after the flight arriving from Pune. Star Air was a training flight originating from Pune, and it was the fifth to land. Exactly one flight landed between training flight and the VIP flight. Exactly one flight landed between the flight arriving from Hyderabad and the flight arriving from Delhi. Exactly one flight landed between Air India and Akasa Air. Go First was a cargo flight arriving from Hyderabad, the VIP flight originating from Bhopal, while the domestic flight originated from Ahmedabad. SpiceJet was a passenger flight and Indigo was a medical flight. क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ द एयरलाइन नेम्स, ऑपरेशनल कैटेगरीज, ओरिजिनल origin, airport, and landing position can be uniquely determined for how many of the 8 flight. Question number 2 कह रहा है if Alliance Air originated from Mumbai, then airline names, operational categories, origin, airport, and landing position can be uniquely determined for how many of the 8 flight. यहाँ पे if की बात हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो 8 नहीं आने वाला, ये तो फॉर श्योर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 में चलो फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है if Indigo landed immediately before the training flight, which airline was the first to land. ठीक है. तो अगर मैं कैलकुलेटिव गेस से जाऊँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि इंडिगो और अलायंस एयर ये दोनों का तो नहीं आने वाला था सीन. ठीक है. यानी कि 2 अगर मैं कैलकुलेटिव गेस भी मानना चाहूँगा तो 6. ठीक है. बट ऑब्वियसली हम तो सॉल्व करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर अ कैलकुलेटिव गेस. मतलब पेपर वाले फेज़ में ना जैसे कई बारी आई मीट स्टूडेंट एंड दे से कि सर कैलकुलेटिव गेस मार दिया, एकदम टीटा क्वेश्चन था 12 लिख दिया. तो वो चीज़ कभी मत करा करो. 8 फ्लाइट है तो 12 तो आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो इन दैट वे यू कैन थिंक कि अगर 8 है तो 2 के बारे में तो यहीं पे दे दिया. तो पॉसिबली आंसर 6 हो सकता है या 6 से कम होना चाहिए था. ठीक है. अब ये सेट क्या है? एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट का सेट है जिसमें अपने को सीक्वेंस बता दिया, जिस सीक्वेंस में फ्लाइट आ रही है, अपने को एयरफ्लेट फ्लाइट का नाम बता दिया गया है, अपने को उनकी कैटेगरी बता दी गई और उनका ओरिजिन बता दिया गया कि वो कहाँ से फ्लाई कर रही हैं, कौन-सी स्टेट सॉरी सिटी से, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल. एक काम करो ऐसा टेबल बना लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स. अब स्टेटमेंट में 2 तरीके से स्टेटमेंट होंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. इनडायरेक्ट स्टेटमेंट मतलब जैसे द मेडिकल फ्लाइट लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर इंटरनेशनल व्हिच इन टर्न इमीडिएटली आफ्टर कार्गो फ्लाइट. ठीक है. जो मेडिकल फ्लाइट है वो इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद आ रही है, यानी कि इंटरनेशनल के बाद मेडिकल फ्लाइट आ रही है एंड व्हिच इन टर्न इमीडिएटली आफ्टर द कार्गो फ्लाइट, यानी कि ये कार्गो के बाद आई होगी. ठीक है. सो ये इन ऑर्डर होना चाहिए था. तो कार्गो, इंटरनेशनल, मेडिकल, कार्गो, इंटरनेशनल, मेडिकल ऐसा कुछ चलने वाला था. बट क्यों ये इनडायरेक्ट है बिकॉज़ अपने को ये नहीं पता ना कि इनका एग्ज़ैक्टली जो 3 पोज़ीशन है वो किधर आएगी, 1 2 3 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो पॉइंट नंबर ए इज़ अ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. पॉइंट नंबर बी, विस्तारा लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर एयर इंडिया व्हिच इन टर्न लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर स्टार एयर. ठीक है. सिमिलर चीज़ अपने को बता दिया क्या है कि विस्तारा लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर एयर इंडिया. विस्तारा जो है एयर इंडिया के एकदम बाद आई है. विस्तारा लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर एयर इंडिया व्हिच इन टर्न लैंडेड आफ्टर स्टार एयर, जो कि स्टार एयर के बाद आई है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 भी ऐसा कुछ नोट कर लिया. पॉइंट नंबर 3, द फ्लाइट अराइविंग फ्रॉम भोपाल लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर द फ्लाइट अराइविंग फ्रॉम चंडीगढ़ व्हिच इन टर्न लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर द फ्लाइट अराइविंग फ्रॉम पुणे. ठीक है. भोपाल की फ्लाइट चंडीगढ़ के बाद आती है और भोपाल की फ्लाइट चंडीगढ़ के बाद आती है और चंडीगढ़ की जो फ्लाइट है वो पुणे के बाद आई होती है. ठीक है. ऐसा कुछ एक पॉइंट ये भी नोट कर लिया. स्टार फ्लाइट वाज़ अ ट्रेनिंग फ्लाइट originating from Pune and it was fifth to land. ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो मतलब 1 2 3 4 5
6, 7, 8। तो फिफ्थ वाले के बारे में क्या बोला हुआ है? स्टार एयर वाज़ अ ट्रेनिंग फ्लाइट एंड फिफ्थ टू अराइव। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि ये स्टार एयर है एंड ये क्या है? ट्रेनिंग फ्लाइट थी, ठीक है? एंड दिस फ्लाइट वाज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पुणे। तो ये पुणे से आ गई। अब अपने को ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, स्टार के बाद आना चाहिए था एयर इंडिया को, उसके बाद आना चाहिए था विस्तारा को, ठीक है? क्योंकि ये हमने यहाँ से उठा लिया था ना, विस्तारा लैंडेड इमीडिएटली आफ्टर एयर इंडिया, व्हिच इन टर्न लैंडेड आफ्टर कार्गो, सॉरी व्हिच इंडेंट आफ्टर स्टार इंडिया, ठीक है? अच्छा, सो हमने ये पॉइंट यूज़ कर लिया। अच्छा, पुणे, चंडीगढ़, भोपाल भी कर सकते हैं, तो पुणे के बाद चंडीगढ़ आ गया और भोपाल भी आ गया, ठीक? तो ये पॉइंट भी हमारा यूज़ हो गया। तो ये 2 पॉइंट यूज़ हो गए। ये नहीं कर पाएँगे कार्गो, इंटरनेशनल, मेडिकल। कार्गो, इंटरनेशनल, मेडिकल तीनों आ सकता है, 1, 2, 3 तीनों आ सकता है, 1, 2, 3 तीनों आ सकता है। सो अभी रुकना पड़ेगा। तो ये क्या था? ये तुम्हारा डायरेक्ट स्टेटमेंट था। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसको तुम बाकी 3 स्टेटमेंट भी यूज़ कर पाए और उनको यहाँ पे प्लग इन कर पाए। ठीक। पॉइंट नंबर ई पे चलते हैं। पॉइंट नंबर ई कह रहा है एग्ज़ैक्टली वन फ्लाइट लैंडेड बिटवीन ट्रेनिंग फ्लाइट एंड वीआईपी फ्लाइट। तो ट्रेनिंग, वीआईपी, ठीक है जी। तो ट्रेनिंग और वीआईपी फ्लाइट, वीआईपी और ट्रेनिंग के बीच में एक का गैप, पॉसिबली दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते थे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली वन फ्लाइट लैंडेड बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली। अच्छा जी, हैदराबाद और दिल्ली के बीच में एक का गैप है, दिल्ली और हैदराबाद के बीच में भी एक का गैप है। अच्छा, एग्ज़ैक्टली वन फ्लाइट लैंडेड बिटवीन एयर इंडिया एंड आकाशा एयर। एयर इंडिया एंड आकाशा, तो ये भी हम कुछ नहीं अभी लिख पाएँगे। सो एयर इंडिया और आकाशा, आकाशा और एयर इंडिया, ठीक है? गो फर्स्ट वाज़ अ कार्गो फ्लाइट अराइविंग फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन अपने को यूनिक दे दी गई है। गो फर्स्ट इज़ अ कार्गो फ्लाइट एंड अराइविंग फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है जी। मतलब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हैदराबाद। अ, वो इधर आ सकता है क्योंकि कार्गो ना अपने को पता था कि यार ये 1, 2, 3 ऐसा होना चाहिए था। तो वो यार अब इधर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1, 2, 3 वाला कॉम्बिनेशन लूँगा तो नाउ दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। दिखा? अगर इधर लूँगा तो यहाँ पे चंडीगढ़ आना पड़ेगा व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो इधर आना पड़ेगा। तो यानी कि ये तुम्हारा हैदराबाद होगा। ऑल्सो अगर ये हैदराबाद है तो हैदराबाद के साथ-साथ ये तुम्हारा दिल्ली होने वाला है। यानी कि यहाँ से मैं ये भी बता सकता हूँ कि दिल्ली वाली कौन-सी है? मेडिकल वाली फ्लाइट है। सो मेडिकल वाली फ्लाइट के बारे में अपने को मिल गया दिल्ली, ठीक है? देखना ना ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने यूज़ करा। कार्गो हैदराबाद, कार्गो से एक फ्लाइट के बाद मेडिकल वाला मिल रहा था और हैदराबाद के एक बाद दिल्ली वाला मिला था, वो भी मिल गया, ठीक है? एंड क्योंकि ऊपर नहीं आ सकता ये ध्यान देना, अभी मेरे को यहाँ पे इसलिए दिख गया था क्योंकि 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है? थोड़ा और पढ़ते हैं, विल गेट मोर क्लैरिटी। द वीआईपी फ्लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम भोपाल, अच्छा भोपाल से वीआईपी वाली है, तो यानी कि यहाँ पे अपने को वीआईपी वाला आ गया एंड देयर वाज़ वन इन्फॉर्मेशन, ये भी पॉइंट हमारी यूज़ होगी, तो ये पॉइंट अभी रिडंडेंट हो गया, ठीक है? व्हाइल डोमेस्टिक फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद, ठीक है? डोमेस्टिक फ्लाइट जो है अपनी अहमदाबाद की है। सो बेसिकली डोमेस्टिक अहमदाबाद इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर कहीं आना चाहिए। मतलब या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपने बैठे होंगे, ठीक है? अच्छा, स्पाइस जेट वाज़ अ पैसेंजर फ्लाइट, अच्छा जी एक और मिल गया। स्पाइस जेट वाज़ अ पैसेंजर फ्लाइट, ठीक है? पैसेंजर फ्लाइट वो इधर भी आ सकता है, स्पाइस जेट इधर, 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 इधर कुछ आ सकता था एंड इंडिगो वाज़ अ मेडिकल फ्लाइट, इंडिगो वाज़ अ मेडिकल फ्लाइट, अच्छा। इसको यहीं लिख देता हूँ ना स डायरेक्ट, अपने पास ये मिला हुआ है तो इंडिगो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। सो अभी ये वाला इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने करी। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग करा और इससे जितना मैं निकाल सकता था मैंने चीज़ों को फिगर आउट कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट टू पॉइंट। मेरे पास सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जिसको मेरे को पता था कि मैं या तो 1, 2, 3 या तो 2, 3, 4 में एडजस्ट कर सकता था, यहाँ नहीं कर सकता। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दैट केस क्योंकि इफ का बात है तो केस तो होने ही वाला है। सो कार्गो इंटरनेशनल एंड मेडिकल, ठीक है? एंड द अदर केस इज़ कार्गो इंटरनेशनल, को साफ से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो।
ठीक है? इंटरनेशनल एंड मेडिकल, ठीक है? इफ कार्गो इज़ ओवर हियर तो इधर आ जाएगा गो और गो यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा हैदराबाद या तो हैदराबाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? एंड अपने को पता है कि मेडिकल के साथ दिल्ली वाला मतलब हैदराबाद और दिल्ली का एक का गैप होना चाहिए था, तो यहाँ पे दिल्ली मिल गया या यहाँ पे दिल्ली मिल गया और इंडिगो को होना चाहिए था इधर, इस वाले केस में अ, इंडिगो इंडिगो, ठीक, सॉर्टेड? अच्छा, ये पॉइंट से मेरे को 2 केसेस जो बने हुए ये दिख गए। गो कार्गो हैदराबाद, गो कार्गो हैदराबाद, ठीक है? अ, इंडिगो मेडिकल दिल्ली, इंडिगो मेडिकल दिल्ली एंड ये रहा तुम्हारा इंटरनेशनल फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट का कैटेगरी। सॉर्टेड? अच्छा, सो ये पॉइंट हमने यूज़ कर लिया, ये पॉइंट यूज़ था, ये यूज़ हो चुका है, ये यूज़ हो चुका है, ये भी यूज़ हो चुका है। ये कह रहा है एयर इंडिया और अकाशा एयर में 1 का गैप है। एयर इंडिया और अकाशा एयर में 1 का गैप है, तो वो गैप इस वाले केस में ही एग्ज़िस्ट करेगा, इस वाले केस में एग्ज़िस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो यहाँ से मैं एक केस ये बना सकता हूँ, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आई कैन क्लियरली से कि अकाशा को यहाँ पे आना पड़ेगा। पर इस वाले केस में आई कैन नॉट क्लियरली से क्योंकि हो सकता है एयर इंडिया अकाशा, एयर इंडिया एंड अकाशा इधर भी आ सकता है, तो अभी रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी मेरे पास स्टार मार्क लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद, तो डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज़ दिस इज़ नॉट डोमेस्टिक। अगर मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद पॉसिबली यहाँ आ सकता है, आ सकता है। डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद इधर भी आ सकता है, आ सकता है। अगर मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ, इधर वाला, तो डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद इधर भी आ सकता है, डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद इधर नहीं आएगा। तो यहाँ वाले केस में अ, ओके, ये वाले केस में यहाँ पे ध्यान देना, डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद इधर भी आ सकता है, डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद इधर भी आ सकता है। वी नीड टू वेट, ठीक है? इधर वाले पे भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो रुकना पड़ेगा, ठीक है? हमारे पास एक पॉइंट और लिखा हुआ है व्हिच सेज कि स्पाइस जेट इज़ मेडिकल एंड इंडिगो इज़ ये पॉइंट भी यूज़ कर चुके हैं बिकॉज़ इंडिगो एंड मेडिकल ऑलरेडी वी हैव नोटेड। स्पाइस जेट वाला देखते हैं, इससे शायद मे बी वी कैन हैव अ क्लैरिटी। स्पाइस जेट इज़ पैसेंजर फ्लाइट, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना ना कि इसको अगर ध्यान दो यहाँ पे, कार्गो, इंडिगो, मेडिकल, पैसेंजर यहाँ आ सकता था, पैसेंजर यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, ठीक है? तो पैसेंजर यहाँ नहीं दे सकता बिकॉज़ एयर एशिया है, पैसेंजर यहाँ दूँगा तो स्पाइसजेट आ जाएगा, पैसेंजर यहाँ दूँगा तो स्पाइसजेट इधर भी आ सकता है, पॉसिबली यस। अच्छा, इस वाले केस पे ध्यान देते हैं, तो स पैसेंजर यहाँ आ सकता है, पैसेंजर यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज़ एयर एशिया इज़ देयर, पैसेंजर यहाँ नहीं आ सकता। तो इस वाले केस में आई कैन क्लियरली से कि पैसेंजर को यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा स्पाइसजेट, ठीक है? ठीक है, ये वाला पार्ट अपना यहाँ पे क्लियर हो सकता है। तो फ्लाइट वाइज़ यहाँ पे कौन-सी फ्लाइट बच रही है अपने पास? अलायंस एयर। है ना? ये बच जाएगा यहाँ पे अलायंस एयर बिकॉज़ स्पाइस जेट इज़ देयर, मतलब ऑप्शन में चलते हैं ना, देखो एयर इंडिया आ चुकी है, इंडिगो आ चुकी है, विस्तारा आ चुकी है, स्पाइस जेट मिल गई है, अकाशा एयर आ गई है ना? अभी अपन क्योंकि इधर वाले केस पे चल रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास एक ही बचा व्हिच इज़ अलायंस, ठीक है? ओके, ये सॉर्ट आउट हो गया। इधर वाली बात करें तो पैसेंजर आ गया, कौन-सा कैटेगरी बाकी है अपने पास? अपने पास कार्गो आ चुका है, चार्टर बाकी है 1 एंड पैसेंजर आ चुका है, ट्रेनिंग आ चुका है, वीआईपी आ चुका है, मेडिकल आ चुका है, डोमेस्टिक बाकी है 2। तो डोमेस्टिक यहाँ दे नहीं सकता, यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि डोमेस्टिक इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, तो डोमेस्टिक यहीं पे देना पड़ेगा। डोमेस्टिक एंड अहमदाबाद इधर वाले केस के लिए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? चार्टर, ठीक? सो फॉर दिस ये वाला केस क्लियरली पूरा ये डिटरमाइन हो गया है। ये वाले केस में भी थोड़ा-सा मेहनत कर लेते, मे बी आई विल हैव फुल इन्फॉर्मेशन फॉर दिस केस आल्सो, एक बार चेक कर लेता हूँ। ट्राई मार लेते हैं, इफ मतलब नहीं पता, मे बी यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कुछ मिल जाएगा तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान बन जाएगी। ठीक है? जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है अपने पास? कार्गो, इंटरनेशनल, मेडिकल डन, चार्टर बाकी है, डोमेस्टिक बाकी है। ठीक है, डोमेस्टिक
इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। यहाँ पे स्टेट वो बाकी था यार, एक बार सिटी भी लिख देता हूँ। यहाँ पे सिटी कौन-सी बाकी है? मुंबई बाकी है, बैंगलोर बाकी है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो मुंबई और बैंगलोर अभी बाकी है, ठीक है? अभी इधर पे भी अपने पास कौन-कौन सी सिटी बाकी है? मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद अहमदाबाद। तो अहमदाबाद यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आएगा बिकॉज़ अहमदाबाद यहाँ पे डोमेस्टिक होना था व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे नहीं आ सकता। अहमदाबाद यहाँ पे आ सकता है क्या? पॉसिबली यस, अहमदाबाद यहाँ पे आ सकता है। अहमदाबाद यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है? ओके, सो डोमेस्टिक यहाँ नहीं आ सकता, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, इस वाली कैटेगरी में ध्यान दें। नाउ आई एम लेफ्ट विथ पैसेंजर आल्सो और चार्टर। पैसेंजर भी नहीं आ पाएगा। देखो यहाँ पे ये चार्टर कन्फर्म हो गया ना, ध्यान देना। इस वाले जो केस में चल रहा था, यहाँ पे पैसेंजर आना बाकी था। पैसेंजर हैपेंस टू बी स्पाइसजेट फ्लाइट, तो वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। डोमेस्टिक आना था जो कि अहमदाबाद को होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे चार्टर आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि दिस इज़ चार्टर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हमने क्लियरली डिटरमाइन कर लिया कि चंडीगढ़ का यहाँ पे होना चाहिए था चार्टर, ठीक है। नाउ आई एम लेफ्ट विथ क्या-क्या पार्ट बचा अपने पास? ये पार्ट बचा है व्हिच कुड बी डोमेस्टिक एज़ वेल एज़ पैसेंजर। अगर ये पैसेंजर है तो दिस विल बिकम स्पाइसजेट एंड दिस विल बिकम अकाशा। अगर ये डोमेस्टिक है तो दिस विल बिकम अ, अकाशा एंड दिस विल बिकम स्पाइसजेट एंड पैसेंजर, ठीक है। आल्सो वी कैन से कि अकाशा डोमेस्टिक और अहमदाबाद है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, देखें क्या-क्या बोला हुआ है एंड देन मे बी विल हैव समथिंग थोड़ा क्लैरिटी और मिल सकता है। अभी इतना तो अपना बन चुका है। इसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट आंसर्स, ठीक है? बिकॉज़ अपने को ये पार्ट यहाँ पे यूनिकली डिटरमाइन होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है? अ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है अपने को? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एयरलाइन ऑपरेशनल कॉस्ट ऑपरेशनल कैटेगरीज़ एंड ओरिजिन फॉर द लैंडिंग पोज़ीशन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द 8 फ्लाइट कैन बी डिटरमाइन्ड। ये 3 का ही कर पा रहे हैं सब कुछ और किसी का तो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यार पंगा क्या है ना कि अभी ये वाला पार्ट इधर और के केसेस में चलते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इफ अलायंस एयर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मुंबई, अलायंस एयर मुंबई का है, ठीक है? अलायंस अगर मुंबई का है, तो ये फिर बैंगलोर का होना चाहिए था। इन दैट केस फॉर हाउ मेनी कैन बी डिटरमाइन्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अलायंस अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो मुंबई होता है, तो यार अलायंस मुंबई इधर भी आ सकता है, अलायंस मुंबई यहाँ पे भी आ सकता है। यार ये चीज़ें तो अपन एक बार फिर से देखते हैं ना, इफ अलायंस एयर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मुंबई, अलायंस अगर मुंबई का है, तो अलायंस मुंबई, तो ये पार्ट से तो निकल जाएगा बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इधर जाता हूँ, तो मुंबई अलायंस मुंबई, यार ये चीज़ अपना नहीं निकलेगा। अगेन ये भी क्या होना चाहिए था 3, टफ वन, ठीक है? क्योंकि थीटा है तो आराम से मार्क कर सकते हो 3, 3 से ज़्यादा तो निकले बिकॉज़ केसेज़ अपने को यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना ना, अलायंस मुंबई, अहमदाबाद डोमेस्टिक और पैसेंजर सॉरी अलायंस एयर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मुंबई ना, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता था कि अलायंस और मुंबई को यहाँ दे दूँ। लेकिन यार अपने को मिल सकता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं ना, इफ अलायंस एयर मुंबई देन एयरलाइन है, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ द 8 कंट्री सबका जो लैंडिंग पोज़ीशन है वो नहीं मिलेगा। आंसर वुड बी 3, ठीक है, आंसर वुड बी 3 क्योंकि ना एक्चुअल में ये देखना ये इंटरचेंज करते जा रहा है, इनका ना वो नहीं मिल रहा है। बाकी तुम ये डिटरमाइन कर ले जाओगे कि कहाँ पे वो कौन-सी सिटी है वो निकल जाएगा, ठीक है, टफ वन। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ करेक्ट कॉम्बिनेशन? विस्तारा वीआईपी भोपाल, विस्तारा वीआईपी भोपाल, ऑप्शन नंबर ए। एयर इंडिया डोमेस्टिक अहमदाबाद, अरे नहीं, ये तो नहीं निकल पाएगा। इंडिगो मेडिकल बैंगलोर, नहीं ये तो अपना दिल्ली था, ठीक है, ये भी गलत। अकाशा चार्टर मुंबई, नहीं ये भी इंडी गलत है। इफ इंडिगो लैंडेड बिफोर ट्रेनिंग फ्लाइट, ट्रेनिंग के पहले इंडिगो आ रही है, यानी कि ये वाले केस की बात हो रही है। देन व्हिच वाज़ द फर्स्ट फ्लाइट टू लैंड? फर्स्ट कौन सी? स्पाइसजेट, ऑप्शन नंबर ओवरऑल मॉडरेट सेट, मतलब आई वुड रेट दिस एज़ अ, ईज़ी से मॉडरेट के बीच में तो नहीं बट हाँ, मॉडरेट सेट। मतलब अगर अ, अरेंजमेंट का एक स्टैंडर्ड सेट जिसमें कि जो आपको सेट पेपर में फँसा सकता है बिकॉज़ इसमें कन्फ्यूजिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।